Hello guys, welcome to my beautiful session. I am Raghav Verma. My channel name is Learn with Raghav. So in today's class we discuss about so important topic that is soil. Today we discuss about all about soil. So soil is a teeming with life, soil profile, soil type. So today we discuss about these topics. Wait. Today we discuss about soil teeming with life, soil profile, soil types, property of moisture in soil, observation of water soil and summary of the chapter. Name is soil. So today we discuss about this all topics in this class. So now our first topic is soil teeming with life profile. So let's get start. Our topic is now soil teeming with live soil profile. So, hey, my mother scolds me for playing in the garden, but I like playing with this brown thing. So, there are two girls, they are friends. There are two girls, they are friends. One friend is tell to your other friend that my mother scolded me for playing me in the garden, but I like to playing in this brown thing. So, that girl said, what is this brown thing? A brown thing is soil. Means एक जो दो फ्रेंड्स थे, मीन्स गर्ल थे वो दोनों फ्रेंड्स, वो एक फ्रेंड अपने दूसरे फ्रेंड को कह रहा था कि मेरी मदर मुझे गार्डन में खेलने की खेलती हैं, बट मुझे तो ये ब्राउन थिंग के साथ खेलना पसंद है, इस ब्राउन चीज़ के साथ। पर वो कहती है ब्राउन चीज़ है क्या? वो ब्राउन चीज़ थिंग्स क्या है? That is called soil. So soil is a mixture of many things. The soil is in the soil there are so many things are mixed in it, like dead remains of animals, water, so many things, etc. Okay, so hey, look what that coming out of the soil. Means they said you can see what are coming out of the soil. You can see this thing. Wait, see this snake like structure, noodle like structure. You can see this. That is an animal. Yes, this is an earthworm. This is like a snake, but this is so small. They said that कि तुम देख रहे हो इस सॉइल में मिट्टी में क्या बाहर निकल रहे, कि वो है क्या चीज़? वो है एक अर्थवॉर्म। आपने इसको देखा होगा, ये ज़्यादातर सॉइल में ही रहता है। व्हाट इज एन अर्थवॉर्म? होता क्या है अर्थवॉर्म? Earthworm is reddish brown organism which lives in a soil. That means earthworm is colors is red brown mix color, red brown mix color exanium, and it is live in the soil. कि जो हमारा earthworm है वो रेड ब्राउन से कलर का है और वो soil में रहता है. So now we learn about what is really earthworm is. Okay, so it's feed on the dead and decaying matter present in the soil. Earthworm, it improves the soil fertility because of it's also called farmer's friend. जो हमारे अर्थवॉर्म होते हैं ना, अगर वो सोयल में आ जाते वो इतने हमारी सोयल के लिए फर्टाइल होते हैं ना। जब हम कोई क्रॉप उगाते हैं, आपने विलेजेस में बहुत देखा होगा कि वहाँ पर बहुत सारे खेत होते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारी क्रॉप्स उगाई जाती हैं, लाइक राइस, वीट, दीज लाइक। ओके, वो उगाई जाती हैं। अगर उसमें ये अर्थवॉर्म आ जाते हैं तो वो सॉइल को फर्टाइल बना देती है, जिससे क्या होता है जो हमारी क्रॉप होती है वो बहुत अच्छी होती है, वो बहुत आगे जाके बहुत अच्छी निकलती है। सो आपको पता है कि अर्थवॉर्म इज ऑल्सो कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड। वो फार्मर के फ्रेंड क्यों है? क्योंकि वो उनकी क्रॉप को और अच्छा बनाने के लिए हेल्प करते हैं। Okay, it improves the soil fertilizer because of it's called farmer's friend. Earthworm are now as the best decomposer. This is form of byproduct of decomposing the plants animals waste which is called vermicompost. जैसे जो हमारे अर्थवॉर्म्स है ना, वेट फॉर वाइल में पढ़ा होगा या 7th में पढ़ा होगा कि वर्मी कंपोस्ट क्या होता है।
जिसमें जो हमारा कंपोज होता है, जिससे हमारी सोइल फर्टाइल होती है, डैट इज कॉल्ड वर्मी कंपोज। ये जो हमारे अर्थवॉर्म होते हैं ना, वो वर्मी कंपोज में ही पाए जाते हैं। इट इज, जब ये सॉइल में आ जाते हैं ना, ये फर्टाइल बना देते हैं एकदम सॉइल को। earthworm now, it is improve the soil we already learned read this is a rich in nutrients and soil. You can see this is a photo of the earthworm. You can see in also previous slides, I think. Oh yeah, this is called earthworm. You can see this is a like a reddish color, brown color. Okay. एंड आज तक आपको ये पता है, एक इम्पोर्टेंट बात, आज तक ना साइंटिस्ट भी नहीं पता कर सके कि इसका रियल फेस कहाँ पे, वो कैसी आँख हैं इसकी, मीन्स आईज हैं। इट इज़ सो स्मॉल। सो जो हमारे अर्थवर्म होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं। न्यूट्रिएंट्स व्हाट आर दैट आर द व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स आर द components of food. ओके, बेनिफिक मेंटेन द सॉइल एंड प्लांट हेल्थी। जो हमारे अर्थवर्म होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स में, मतलब कंपोनेंट्स में सो हाई होते हैं, और वो हमारे प्लांट्स जो सॉइल को ना फर्टाइल रखते हैं और प्लांट्स को हेल्थी रखते हैं, जिससे हमारी क्रॉप खराब नहीं होती है। There are more organism like in the soil, that there are earthworm is also in the soil. There are, मतलब ये पूछ रहे हैं कि सोइल में और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं लाइक अर्थवर्म। आई एम नॉट श्योर। वो मीन्स ये दोनों फ्रेंड्स बात कर रहे हैं कि तुम्हें पता, क्या तुम्हें लगता है कि सोइल में और भी ऑर्गेनिज्म होंगे अर्थवर्म जैसे? वो कहती है आई एम नॉट श्योर, कि मुझे पक्का पता नहीं है। देन लेट्स फाइंड आउट। सो वो अब क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट करते हैं। सो अब हम एक एक्टिविटी करते हैं। आप अपने घर में भी एक्टिविटी कर सकते हो। कलेक्ट सम सॉइल सैंपल फ्रॉम द डिफरेंट प्लेसेस। आपने क्या करना है, डिफरेंट प्लेसेस जहाँ पर सॉइल होगी आपने कलेक्ट करनी है, डिफरेंट्स, एंड ऑब्जर्व देम केयरफुली ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन इट। आपने उसको केयरफुली देखना है कि उसमें ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं क्या नहीं। सो दिस इज द चार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, यू कैन ऑल्सो सी, टेक अ स्क्रीनशॉट. So first is garden, grass, rose, etc. And like garden है, सॉइल कहाँ से ली गई है हमारी, ये मीन्स आपने गार्डन से सॉइल लेनी है अपने। ग्रास, रोज एक्सेट्रा, उसमें क्या क्या आपने देखा, ले लिया, और उसमें क्या क्या दिखा आपको, आंट देखी आपने, आंट मीन्स कीड़ी, चींटी, यू कॉल्ड इट, या आपने उस सॉइल में क्या क्या देखा, आंट हो सकते हैं उसमें, स्नेल हो सकते हैं उसमें, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, स्मॉल स्मॉल अर्थवॉर्म भी हो सकते हैं, राइट? करेक्ट आंसर इज यस, देयर आर सो मैनी organism in the soil like earthworm. So there are so many, you can take the screenshot it. So along with these animals there are also many helpful microorganisms present in the soil. इनके जैसे और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, मीन्स अर्थवर्म जैसे और भी बहुत सारे हैं जो हमारी सोइल को फर्टाइल में हेल्प करते हैं। दीज आर ऑल ऑर्गेनिज्म दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सॉइल लाइक आंट, अर्थवर्म, स्नेल, इंसेक्ट, आंट, अर्थवर्म, नॉन ऑफ दीज। अगर आप गार्डन से लोगे तो हाँ उसमें होंगे ऑर्गेनिज्म, आप सोइल फ्रॉम रोड से लेगे हाँ उसमें होंगे। अब आप कंस्ट्रक्शन साइड पे लोगे, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, बट वहाँ पर कुछ नहीं होगा। ओके, सो हे आई एम ऑल्सो फाइंड प्लास्टिक बैग इन द सोइल। कि वो कह रही है मैंने ऑर्गेनिज्म तो देखे बट मैंने एक और चीज़ देखी, प्लास्टिक बैग्स। आई वंडर वाई डू पीपल थ्रो द दैम लाइक दिस। कि उसने देखा, हाँ मैंने सोइल में देखा एक प्लास्टिक बैग, पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं कि उसमें उसको ऐसी गेर, मतलब फेंक देते हैं। सो अगर हम पॉलीथीन को ऐसे गिर देते हैं तो वो क्या करता है, it's create a soil pollution. Okay, you can see these all are plastic bag. This is so dirty place, this is called the soil pollution. We cannot use the plastic bags, they kill the organism living in the soil. अगर जो इसके, अगर आप सोच रहे होंगे तो क्या हुआ अगर सोइल में हमारी प्लास्टिक बैग्स आके हैं, ये क्या करते हैं, जो हमारी सोइल होती है उसको फर्टिलाइज करना बंद कर देते हैं, और जो हमारे हेल्प करते हैं ऑर्गेनिज्म
जो हमारे ऑर्गेनिज्म सॉइल को फर्टाइल करने में हेल्प करते हैं, वो सॉइल मीन्स प्लास्टिक बैग उनको मार देते हैं, दे डाइड देम, एंड सॉइल नॉट फर्टाइल, जो हमारी क्रॉप्स होगी वो भी नहीं अच्छी निकलेगी, तो हमारे लिए ये सॉइल पोल्यूशन क्रिएट करते हैं. सो कैन यू थिंक समटाइम्स एक्सपेक्ट प्लास्टिक बैग पॉलीथीन दैट इज पोल्यूट सॉइल. क्या आप क्या कहना चाहते हैं कि अगर हमारी सॉइल में प्लास्टिक बैग्स होंगे, पॉलीथीन्स होंगे, ये सॉइल को पोल्यूट करेंगे क्या? नहीं. सो आई विल गिव यू 5 seconds. You can write your answer in the comment box. Be fast. Write it. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So correct answer is yes. कि ये प्लास्टिक बैग और पॉलीथीन हमारी सॉइल को पोल्यूट करते हैं. ओके. कैन यू थिंक अदर सब्सटेंस एक्सपेक्ट्स प्लास्टिक बैग्स या नंबर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट केमिकल. एंड जो हमारे पॉलीथीन होते हैं वो किससे बनते हैं? बहुत सारे केमिकल से बनते हैं, केमिकल से जो हमारी सॉइल के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है. सो व्हाट टू डू, हमें क्या करना चाहिए ऐसा कि जिससे हमारी सॉइल पोल्यूट नहीं होगी? प्लास्टिक एंड पॉलीथीन बैग शुड बी बैंड. जो हमारे प्लास्टिक और पॉलीथीन बैग होते हैं उनको बैन कर देना चाहिए. तो आप सोचेंगे कि हम फिर क्या करेंगे, हम अपने पॉलीथीन जो हम यूज़ करते हैं तो हम उसका क्या करेंगे? आप जूट बैग्स भी ले सकते हो, क्लॉथ बैग्स भी ले सकते हो, पेपर बैग्स भी ले सकते हो. देयर आर सो मैनी बैग. इफ यू बैन द प्लास्टिक बैग, इट्स ऑल्सो गुड फॉर आवर अर्थ. You know, if there are so many pollution in our earth is no more. Waste product and chemicals should treat before you released into the soil. The use of pesticide should be minimized and organic farmer has no precedents. इनमें सिर्फ इसमें यही बताया गया है कि हमें क्या क्या करना चाहिए. You can see this. This is plastic bag. Ban it. So our soil, our crop skin means अगर हमारी जो क्रॉप होगी वो अच्छी बनेगी, मतलब उगेगी, उसकी अच्छी ग्रोथ होगी. एंड यू सी दिस पिक्चर कि हमें कोई भी सॉइल में केमिकल नहीं डालने चाहिए. यू कैन सी दिस पर्सन, ये क्या कर रहा है, हमारी क्रॉप्स को क्या कर रहा है? व्हाट इज दिस दैट? ये हमारी केमिकल दे रहा है जिससे जो हमारी क्रॉप अच्छी, मतलब अच्छी नहीं उगे, जल्दी उग जाए. और ये क्या, हमारे अर्थवर्म्स. अर्थवर्म क्या होते हैं? हमारी सॉइल के लिए बहुत फर्टाइल होते हैं. सो डिड यू नो अ टीस्पूनफुल ऑफ सॉइल में कंटेन 100 मिलियन बैक्टीरिया. अगर हम ना एक चम्मच लें, एक स्पून लें सॉइल का, तो वो कितने बैक्टीरिया क्रिएट करता है? 100 बैक्टीरिया. ओके, दिस इज अ सो इंटरेस्टिंग question. It is also in GK question. You can take the screenshot. Doubt. If you have any doubt now, I will give you 3 minutes, 4 minutes, any time. आपने क्या करना है? आपने अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिख देना है या आपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है. व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सो बी फास्ट. आपको बहुत सारे अपडेट्स मिल जाएंगे कि वीडियो कब आनी है, कब लाइव स्ट्रीम होगा. आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो वहाँ पर. सो बी फास्ट, ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप एंड यू कैन ऑल्सो राइट योर डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स. So if you have any doubt in our these topics, so you can write. We can also take a quiz now. I will take one recap before the quiz. क्विज से पहले हम एक रीकैप ले लेते हैं कि आज हमने अब तक हमने क्या क्या पढ़ा. आज नहीं, अब तक क्या क्या पढ़ा हमने. ओके. सो आज हमने पढ़ा था सॉइल के बारे में. अब हमने ये फर्स्ट टॉपिक अपना कंप्लीट किया है, सॉइल टीमिंग विद लाइफ. ये हमने टॉपिक कंप्लीट किया अभी तक. सो 2 गर्ल्स थी, फ्रेंड्स थी. वो एक गर्ल पूछ रही थी कि मेरी मम्मा तो मुझे गार्डन में खेलने के पहले पूछते, मुझे तो ब्राउन ये थिंग के साथ खेलना पसंद है. क्या वो ब्राउन थिंग है क्या रियलिटी में? वो ब्राउन थिंग है हमारी सॉयल. ओके.
सोइल एग्जैक्टली है क्या? सोइल एक बहुत सारी चीज़ों का मिक्सर है। और सोइल सोइल में ऐसी क्या चीज़, ये आप देख रहे हो कि ऐसी क्या चीज़ बाहर निकली है, डेट इज कॉल्ड हमारा अर्थवॉर्म है। वो अर्थवॉर्म एग्जैक्टली है क्या? अर्थवॉर्म एक रेडिश ब्राउन ऑर्गेनिज्म है जो सॉइल में रहता है। ये सॉइल को बहुत फर्टाइल रखता है, जिससे हमारी सॉइल बहुत अच्छी, जो हमारी क्रॉप्स होती है बहुत अच्छी उगती हैं। सो आपको पता है कि ऑर्गेन सॉइल में और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो हेल्प करते हैं फर्टाइल करने के सॉइल को, लाइक आंट, अर्थवॉर्म, स्नेल, दैट इज़ ऑल्सो हेल्प्स कॉल टू फर्टाइल। सो जो हमारे ऐसी भी बहुत सारी चीज़ हैं कि जो हमारी सॉइल को गंदा करती है, पोल्यूट करती है, डैट इज़ प्लास्टिक बैग्स। हमें प्लास्टिक बैग्स को क्रिएट नहीं करना चाहिए। हमारे ऑर्गेनिज्म को होती है, जो हमारी हेल्प करते हैं उनको फर्टाइल करने को, वो उनको मार देती है और ये पोल्यूशन क्रिएट करती है। सो अभी तक हमने ये पढ़ा है, हमें पोल्यूशन बैग को बैन कर देना चाहिए। सो नाउ लेट गेट स्टार्ट द क्विज़ेस। वेयर इज सॉइल फाउंड? आपको क्या लगता है सॉइल कहाँ फाउंड होती है? आई विल ऑलरेडी राइट योर आंसर। रोड साइड, माउंटेन्स, गार्डन और ऑल ऑफ दिस, इन सारों में कहाँ फाइंड होती है? रोड साइड में ही सॉइल फाउंड होते हैं क्या, माउंटेन में, क्या गार्डन में, क्या इन तीनों में ही? सो आई विल गिव यू 5 seconds. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. राइट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। कि जो हमारी सोयल है वो सभी कहीं होती है, एक जगह नहीं होती। वो रोड साइड में भी होती है, माउंटेन में भी होती है और गार्डन में भी होती है। सो सेकंड आंसर इज व्हाट कॉजेज सॉइल पॉल्यूशन? इनमें से कौन सी चीज सॉइल पोल्यूशन क्रिएट करती है? माइक्रोऑर्गेनिज्म, लीव्स, अर्थवर्म, पेस्टिसाइड। सो आई विल गिव यू 5 seconds. 5 4 3 2 1. राइट आंसर इज pesticide. So I will already mark the answer. पेस्टिसाइड जो हमारी सॉइल को पोल्यूट करते हैं। फॉलोइंग वेज हेल्प अस टू रिड्यूस सॉइल पोल्यूशन? इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारे सॉइल पोल्यूशन को बंद कर सकती है? रिड्यूस पॉलीथीन बैग्स, की पॉलीथीन को बैग को बंद कर दो। प्रैक्टिसिंग ऑर्गेनिज्म फार्मिंग की, हमें बहुत सारी फार्मिंग करनी चाहिए। टेस्टिंग वेस्ट प्रोडक्ट, हमें वेस्ट प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहिए। ऑल ऑफ दी। सो आई विल गिव यू 5 seconds. 5 4 3 2 1. So right answer is all of these. So our next topic is soil profile. Our quiz is done. So our next topic is soil profile. Now अब हम soil के बारे में पढ़ेंगे. So when there is any construction of new buildings, the land is dug out. जब हमारी न्यू बिल्डिंग बनती है कई जगहों पर, तो वो क्या होता है, डग आउट हो जाती है, बंद कर दी जाती है। तो वहाँ पर हमारी सोइल होती है। यू कैन सी दिस। सो इफ यू गेट एनी चांस टू लुक क्लोजली द डग अप प्लेस, यू will notice that there is a change in the color of the soil different levels. तो आप देख सकते हो। वेट, आई विल टेल यू प्रॉपरली। वेट। सो आप देखोगे ऐसी कंस्ट्रक्शन एरिया, जैसे आप अपने घर के बाहर या अंदर देखो कि वहाँ पर एक बहुत सारी जगह थी, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन मीन्स रोड बनने शुरू हो गए। जब वो मीन्स जो खोदते नहीं है मिट्टी को, जब खोदते हैं, जब मिट्टी सारी निकल जाती है, तो उसको आप इसमें देखो, ऐसे मिट्टी को खोदते हैं, ऐसी ऐसी मीन्स जगह बना देते हैं नीचे। तो आप ऐसे उसमें से देखोगे ऐसी लेयर्स बन जाती हैं। जब हमको ये ब्राउन लेयर, ये लाइट ब्राउन, ये डार्क, ऐसी ऐसी बन जाती है। सो ये क्या होते हैं, डिफरेंट कलर्स होते हैं सॉइल के। सो सोइल इज अ कंपोज्ड डिस्टेंस लेयर्स, ये सॉइल की ना एक तरह की लेयर्स होती हैं। ओके, सो नाउ वी डू वन एक्टिविटी. So let's us understand with an activity how these are layer formed. So activity आपने क्या करना है, एक जार लेना है, टेक सम सॉइल एंड पुट इन बेकर कंटेन वाटर। आपने एक बेकर लेना है जिसमें वो कांच का हो, जिससे आपको बाहर अंदर दिखे। आपने उसमें सॉइल डाल देनी है। सो टेक सम सॉइल एंड स्टीर द मिक्सचर एंड अलो सेटल डाउन। आपने क्या करना है, उसको मिक्स कर देना और सेटल डाउन होने दे देना है। तो आपने क्या करना है, उसको थोड़ी देर के लिए रख देना है। वट डू यू ऑब्जर्व? सो थोड़ी 1-2 घंटे के बाद आप क्या देखोगे कि उसकी लेयर्स बन जाएंगी।
उस लेयर्स में क्या क्या होगा, लाइक दिस, वाटर होगा एक जगह, सैंड होगी एक जगह, आपने उसमें पानी भी डाल देना है, आपने आप अलग अलग लेयर्स बन जाएंगे उसकी। ये आप एक्टिविटी अपने घर ही कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन आपने नहीं देखा तो आप ये एक्टिविटी अपने घर ही कर सकते हैं। सोइल इज मेन ऑफ, अपने हमने सब लाइन में ही पढ़ा था कि सोइल एक मिक्सचर है बहुत सारी थिंग्स को। उसके मिक्सचर है क्या, रोटिंग डेड मैटर, ह्यूमिस, क्ले, सैंड, ग्रेवल एटसेट्रा। सो सोइल इज मेड ऑफ मैनी सब्सटेंस, की जो सोइल है वो बहुत सारी चीज़ों से बनी है। सोइल इज मेड अप ऑफ मैनी, हाउ दीज सब्सटेंस एंड अप बिकम सोइल, कि इनसे कैसे सोइल बनती है, क्या आपको पता है? सो नाउ लेट्स लर्न अबाउट दिस। सो व्हाट विल हैपन इफ इट दीज रॉक, ये आप रॉक देख रहे हो, तो क्या होता है अगर बहुत सारी हीट विंड से ये क्या होती है, क्रैक हो जाती हैं। उन क्रैक से इनके स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स हो जाते हैं, क्या बन जाते हैं, इनके स्मॉल स्मॉल फिगामेंट्स पार्टिकल्स बन जाते हैं। उन पार्टिकल्स से हमारी सॉइल्स बनती हैं, ओके, लाइक दीज पार्टिकल्स। सो नाउ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, की फॉर्मेशन है सॉइल की, सॉइल इज फॉर्म बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक, आई विल ऑलरेडी टेल यू। सो ब्रेकिंग डाउन सॉइल से बनती है, लार्ज रॉक्स जब टूट जाते हैं उनके स्मॉल स्मॉल पीसेस बन जाते हैं, सो हमारी सॉइल बनती है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग, ओके, ये नेचुरल होता है। लेट्स अबाउट लेयर्स, नाउ लर्न अबाउट दिस लेयर, सॉइल प्रोफाइल। सो अ वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर ऑफ द सॉइल इट्स कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। ये सॉइल प्रोफाइल होता क्या है, वर्टिकल सेक्शन की अलग अलग पार्ट सॉइल के डिफरेंट लेयर्स, दैट इज कॉल्ड अवर सॉइल प्रोफाइल, ओके। सो ईच लेयर डिफरेंट इन फीट, टेक्सचर, कलर, डिप्थ। जो हमारे अलग अलग लेयर होती हैं वो सेम नहीं होती, उनके अलग अलग मीन्स टेक्सचर होता है, उनका अलग कलर होती है। जैसे फर्स्ट, अब हम इन लेयर के बारे में पढ़ते हैं, टाइप्स नहीं पढ़ रहे हम, लेयर्स पढ़ रहे हैं। फर्स्ट है हमारी होरिजन ए, होरिजन बी, होरिजन C, and this is bedrock. There are 4 types of layer of the earth. So it is dark in the color and it is rich in, जो अब हम इन अलग अलग के बारे में पढ़ेंगे। जो ए होरिजन होती है वो क्या होती है, वो डार्क कलर में होती है और रिच हुमस एंड मिनरल्स में होती है, उसके रिच ज़्यादा होते हैं उनमें। एंड वो मेक्स द सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं, उनमें न्यूट्रिएंट्स रिच होते हैं। अब नेक्स्ट है हमारी हो, यही है एंड रोड स्मॉल प्लांट्स एंड बेलरिक्स, जो उसमें क्या होते हैं, स्मॉल स्मॉल प्लांट्स की रूट्स होती हैं, ओके, स्मॉल प्लांट्स की, ज़्यादा बिग नहीं, ओनली स्मॉल। इट इज लेयर्स इज जनरली सॉफ्ट, यू कैन रिटेल मोर। एंड इसमें क्या होते हैं, जो हमारे कई एनिमल्स नहीं होते हैं, लाइक रैबिट, सम एनिमल्स जो जमीन के नीचे चल जाते हैं, वो भी उस लेयर में ही रहते हैं सॉइल की, होरिजन ए। सो नेक्स्ट है हमारी होरिजन बी, इट हैज़ ए लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमन बट मोर ऑफ मिनरल्स। इसमें जो हमारी क्या होती है, इसमें हुम्स लेस होते हैं और मिनरल्स ज़्यादा होते हैं, ओके। सो दिस लेयर इज जनरली हार्डर एंड मोर, ये हार्ड होती है, एंड मेड अप ऑफ स्मॉल लूप्स ऑफ रॉक्स विद क्रैकर्स एंड क्रीवेजेस, ये बहुत सारे क्रीवेज मीन्स पत्थर वगैरह से बनी होती है। और बेड रॉक क्या होती है हमारी, अ लेयर हार्ड, जो पत्थर होते हैं हार्ड होती है। क्या आपको पता है कि डिड यू नो इट्स टेक मिनट 50 आवर टू फॉर्म वन रीच ऑफ टॉप सॉइल, आपको पता है कि उसको 50 सॉइल को ना 500 ईयर्स लग जाते हैं, 500 साल लग जाते हैं उसको ना रिच बनने में, अच्छी बनने में। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देना है। अगर आप ऑल्सो अपने उसमें भी लिख सकते हो, किसमें, doubt means comment box में। So now there is quiz time. The process of breaking down of rock is called, जब rock टूट जाते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, weathering, soil timming, soil erosion, soil pollution। I am give you 5 seconds.
5, 4, 3, 2, 1. राइट आंसर इज वेदरिंग. सो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जब हमारे रॉक्स ब्रेक हो जाते हैं उसको हम वेदरिंग कहते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ? आई विल ऑलरेडी टेल यू. ए होरिजन. आपने ना देखा होगा ए होरिजन लिखा होगा, फिर बी, फिर सी. आप पहले ही समझना, ए होरिजन मतलब फर्स्ट, बी होरिजन मतलब ए होता है फर्स्ट, बी होता है सेकंड एंड सी होता है थर्ड एंड फोर्थ. तो आपको पता है ये बेडरॉक. So this is so easiest now. I will already tell you answer. You can take the screenshot of this question and learn. It is important questions. जो हमने पढ़ाया हम उसके बारे में ये क्वेश्चन ले रहे हैं. लेट्स प्रैक्टिस. अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, कि क्या क्या पढ़ा हमने. अ मैन डिगिंग अ पिट फाउंड द दे कुड डिग विद easy intently, but digging became difficulty as he went deeper. He could not dig down deep and 5 feet provides utile scientific explanation. So हमने इसमें क्या पढ़ा? इस क्वेश्चन का आंसर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. ये इंटरनल क्वेश्चन है. सोल हैज़ 4 लेयर की ये कह रहा है. इसमें क्या था? वो नीचे जा रहा था, जो मैन था वो उससे नहीं जाया गया. इसमें सिर्फ यही बताया गया है सोल की लेयर्स के बारे में. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकेट द फॉलोइंग जोन्स इन द फिगर विच शो अ डायग्राम ऑफ सोइल प्रोफाइल टोपोसेल. यू कैन. इट इज़ सो इजी क्वेश्चन गाइस, इट इज़ सो इजी क्वेश्चन. ये हमने अभी पढ़ा था, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो. ये आपका है होमवर्क. इट इज़ अ होमवर्क क्वेश्चन. इट इज़ अ होमवर्क क्वेश्चन. I will not give you solution of this question. Take a screenshot and you can send me answer of this question. Answer of this question in the WhatsApp group. So अब हमने क्या पढ़ा था कि हम सारा पढ़ेंगे. अब हम समरी पढ़ते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा आज. So अर्थवर्म मैनी मीन्स एक तरह का ये रिकैप है. Earthworms are now as the best decomposer. They form the byproduct after decomposing the plants, animals. इसमें बस पहली लाइन में अर्थवर्म हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. पोलीथीन्स बैग्स एंड अदर प्लास्टिक पोल्यूट. जो हमारे पोलीथीन बैग है वो सोइल को पोल्यूट करते हैं. सोइल इज अ कंपोज डिस्टेंस लेयर. सोइल इज मेड अप ऑफ मैनी सब्सटेंस लाइक सॉइल. मीन्स जो सोइल होती है वो बहुत सारी चीज़ों से बनती है. वर्टिकल सेक्शन थ्रू जो सोइल की डिफरेंट लेयर्स होती है. फर्स्ट इज होरिजोन, सेकंड इज बी होरिजोन, सी इज होरिजोन एंड फोर्थ इज बेडरॉक. सो अगर किसी को भी आज की क्लास में कोई भी डाउट था, सिंपली छोटा सा भी डाउट, उसने क्या करना है? व्हाट्सएप. सबसे पहले आपको यही बता देता हूँ, वेट फॉर अ व्हाइल. की वीडियोस हैं, आपने जो आप पे क्लिक करना है लाइक दिस. आई विल ऑन दिस वीडियो. सो आपने क्या करना है? आप ये एरो देख रहे हो, यू कैन सी दिस एरो. आप ये स्मॉल सा एरो देख रहे हो, इस पे क्लिक करना है. आपने इस एरो पे क्लिक करना है. ये आदे ये देखो, ये एरो ये ऐसे नीचे हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा ऐसे. जब आप इस एरो के नीचे देखोगे उस वीडियो पर, वहाँ यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर होगा हमारा वीडियो का लिंक. सो आई विल ऑल्सो गिव यू लिंक लाइक दैट. वेट फॉर अ व्हाइल लाइक दिस. हेलो एवरीवन. सो आपने क्या करना है? इस पे क्लिक करना है. क्लिक कर दिया. सो आप ऐसे ऐसे ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है. ये देखो मैंने लिखा हुआ है गाइस वी अरेंज द कंपटीशन. सो ये जैसे ऐसे यहाँ पर मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, बट हमने टेलीग्राम ग्रुप को कैंसिल कर दिया कि बच्चे टेलीग्राम नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं. बट सो हमने क्या किया, हमने अब व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया. ओके. सो सबसे पहले आपने क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है
और बेल आइकन को दबाना है. Don't forget to subscribe. सो आपको कोई भी डाउट है अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे लिखना है. सो थैंक यू. सो बाय फॉर नाउ. सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू डू द होमवर्क एंड सेंड मी ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप. सो बाय गाइस.